Hello guys, welcome back to my channel Speak and Shine with Vikram Juneja. I hope you're all doing well. In my last videos, I have taught you the very basic the parts of speech. I hope that those videos were useful to you. In my present video, I'm going to be taking up the next language structure, that is tenses. Tenses are very useful for an effective communication. We are going to be dealing with the tenses. Tenses basically denote the time of action or state of being. There are three categories of tenses which we are going to be dealing with: present, past, and future tense. These are the three tenses in English. In this video of mine, I'm going to be dealing with present tense and the four sub parts of the present tense. Guys, I'm going to deal with the present tense. As I told you, there are three types of tenses: present, past, and future. Before I begin, I have a small request to make. If you are actually liking my channel, if you are benefiting out of it, I'll request you all to please subscribe and like my channel. This will not only give me the impetus to actually work harder for you people, but it is also going to help those people. I'll be able to reach out all and sundry. मैं सब लोगों के पास पहुंच सकूंगा आपकी मदद से, और मैं सब लोगों को कुछ ना कुछ सिखा सकूंगा। आज मैं आपको बता रहा था जैसे कि हमारे इंग्लिश में तीन टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टुडे वी आर गोइंग टू डील विद प्रेजेंट टेंस. Present tense actually has subtypes: present indefinite or present simple. That is the first type of present tense. Then we have present continuous, then present perfect, and then present perfect continuous. I'm going to actually deal with the rules of these tenses as to how you use those frameworks of all these present tenses to make correct sentences. Let's begin. Present tense is subdivided into present simple or present indefinite tense. Okay, now I am going to give you a framework. जैसे हम कोई माला बनाते हैं, है ना, धागे में हम मोती पिरोते हैं ना, तो यही मोती हमने पिरोने हैं ताकि एक सेंटेंस बना सकें। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो हम साथ में जोड़ेंगे जिससे एक करेक्ट सेंटेंस बनता है। मैं आपको बताता हूं, आपको मैं पहले फ्रेमवर्क बताता हूं इसका। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको याद है, आपको याद होगा कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है। नाउन और प्रोनाउन, इसे हम सब्जेक्ट कहेंगे यहां पर क्योंकि वो बिगिन कर रहा है सेंटेंस को। नाउन और प्रोनाउन यूज करते हैं। देन वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब आर एक्शन वर्ड्स बेसिकली। मैंने आपको बताया था कि वर्ब्स होते हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने आपको जानकारी दी थी, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं। प्लस हमें क्या यूज करना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट जो कर रहा है काम, और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वो काम हो रहा है, that is basically the object. And verb are the action words. As I told you, this is also a part of speech. So first form of the verb is going to be used in making a simple present tense, right? I'm going to give you an example here. जो हम रोजमर्रा काम करते हैं, रोज अपनी जिंदगी में काम करते हैं। आई गो टू माई ऑफिस, आई वर्क हार्ड, he goes to school every day. Okay, we go for a walk in the evening. These are basically the things which are a habit, or maybe the things which you do on daily basis. So they fall under simple present tense. He goes for a walk every day. He is a subject, is a pronoun, right? Did I tell you what a pronoun is? Pronoun is the word which is used in place of a noun. Sarvnam, in Hindi we call it sarvnam. Noun is sangya and pronoun is sarvnam. Goes is the first form of the verb. You've heard go, went, gone. Go is the first form of the verb, went is the second form of the verb, and gone is the third form of the verb. Why have we used es over here? Because it's a singular pronoun. If I had said they over here, they go to school every day, ठीक है। तो दे हमने यूज किया, ये प्लूरल है, प्लूरल, ज्यादा, एक से ज्यादा। तो उसके बाद हम जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे तो गो लगाएंगे, ईएस नहीं लगेगा,
टू स्कूल एवरी डे इज अ प्रेडिकेट, जिसे हम पूरक भी कहते हैं, या ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे किसी सेंटेंस को हम, अगर मैं सिर्फ आपको बोलता हूं दे गो, तो आप मुझे कहेंगे कि सर ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, वेयर डू दे गो। मैं बताऊंगा आपको दे गो टू स्कूल एवरी डे। सो टू स्कूल एवरी डे इज बेसिकली अ प्रेडिकेट विच इज कंप्लीटिंग द सेंटेंस। इन हिंदी वी कॉल इट पूरक, राइट। सो दिस इज बेसिकली योर प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं चाहूंगा कि आप हमारे इनबॉक्स में कुछ ऐसे एग्जांपल्स प्रेजेंट सिंपल टेंस के दीजिए, और मुझे बताइए कि आपको ये समझ आया है कि नहीं। ओके, देन वी मूव ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ टेंस, the subcategory of present tense, which is present perfect। जैसे आपको मैंने बताया कि ये है एक फ्रेमवर्क, इस फ्रेमवर्क के अंदर हमने वर्ड्स को पिरोया और एक माला बनाई, और वो माला हमारा एक सेंटेंस है। उसी तरह इस फ्रेमवर्क को, इसमें भी एक फ्रेमवर्क लगेगा जिसे हम स्केलेटन बोलते हैं। उस स्केलेटन के ऊपर बॉडी आती है तो एक इंसान बन जाता है। तो उसी तरह ये जो स्केलेटन है इसको हमने पिरोकर एक सेंटेंस बनाया है। उसी तरह हम प्रेजेंट परफेक्ट को भी एक सेंटेंस के फॉर्म में बनाएंगे, मगर उससे पहले मैं आपको इसका फ्रेमवर्क बताता हूं। जैसे इसमें भी लगेगा नाउन और प्रोनाउन, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, प्लस हैज और हैव, depending upon the noun or the pronoun. If the noun or the pronoun is singular, then we use has. If the noun or pronoun is plural, then we'll use have. Okay, and then we use the third form of the verb. There are three forms of the verb, like go, went, gone. As I told you, go is the first form of the verb, went is the second form of the verb, and gone is the third form of the verb. And plus we are going to be using the object. Okay, right? So this is the framework around which we are going to make a sentence which will deal with present perfect. Present perfect, I'm going to give an example. वो अपना काम कर रहा है, कर चुका है, right? So it is he has completed his work. He is a pronoun. नाम भी लिख सकते हैं किसी का, तो वो noun हो जाएगा, plus the object. Of course, this is a framework which we are going to be using to make our complete present perfect tense sentence, right? So I'm going to give an example here. He has completed his homework. वो अपना काम कर चुका है, okay? वो ऑफिस जा चुका है. He has gone to the office. वो ऑफिस गया है, okay? जो काम अभी होकर हटा है उसे हम present perfect tense की कैटेगरी में लेकर आएंगे. He has completed, इसमें आप नाम भी लिख सकते हैं. विक्रम हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, नेहा हैज सबमिटेड हर वर्क, ओके, नेहा हैज गॉन टू द ऑफिस, ओके, वो अभी ऑफिस गई है तो मैं कहूंगा नेहा हैज गॉन टू द ऑफिस, राइट? सो ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क. सो ही इज द प्रोनाउन, हैज इज द हेल्पिंग वर्ब. वर्ब की जो हेल्प करता है तो वो एक हेल्पिंग वर्ब कहलाता है. इसमें हमने हैज इसलिए लगाया क्योंकि जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर है. अगर दे होता यहां पर, अगर वी होता यहां पर, तो हम यूज करते हैव. वी हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क. ही हैज कंप्लीटेड. कंप्लीटेड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, right? Complete is the first form of the verb, completed is the second. Third form of the verb will also be completed. Bring, brought, brought. Okay, so that's basically how it is done. Do, did, done. Do is the first form of the verb, did is the second form of the verb, and done is the third form of the verb. His homework is your object basically. So this is how you complete a sentence of present perfect nature. He has completed his homework. They have continued with their journey. They have submitted their assignment. Okay, I have I have finished my work well in time. All these sentences actually fall under the category of present perfect tense. Let's move on to the third subtype of present tense now. The third subtype of present tense will be present continuous. जो काम अभी चल रहा है, I am making a video to teach you. So that is basically present continuous tense. जो भी काम अगर अभी आप कर रहे हैं, अगर आप जा रहे हैं कहीं पर और कोई आपसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं,
आई एम टेकिंग अ वॉक इन द गार्डन, आप गार्डन में जा रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम टेकिंग अ वॉक इन द गार्डन। ओके, आप मूवी देखने जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी राइट नाउ। सो जो भी काम अभी आप कर रहे हैं बेसिकली वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो इसका एक हम फ्रेमवर्क, जैसे इनका फ्रेमवर्क है, जैसे मैंने आपको बताया ये फ्रेमवर्क है और इसका ये फ्रेमवर्क है बेसिकली। ठीक है, उसी तरह मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी एक फ्रेमवर्क है जो होगा नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस, अब इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर नाउन और आवर प्रोनाउन, इज, एंड और आर। अगर हम कहते हैं ही, शी, इट, तो उसके आगे लगेगा इज। एम आई के आगे लगता है, आई एम वॉकिंग इन द गार्डन, आई एम कंप्लीटिंग माई वर्क, आई एम स्टडिंग sciences, right? So these am will be used as a helping verb when you are using I as a pronoun. Okay, if you are using he, she or it, then you are going to use is, and if you are using a plural noun or a pronoun, then you are going to be using are. Okay, after that we are going to use first form of the verb with ing. ये सारे ing सेंटेंसेस होंगे क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं, और प्लस हमारा होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करता है बेसिकली। तो इसका भी एक मैं आपको एग्जांपल और उदाहरण दे देता हूं। ही इज हेल्पिंग हिज मदर इन द किचन। ही प्रोनाउन, उसके साथ मैंने बोला ही के साथ इज लगेगा। अगर मैं लिखता आई, अगर कोई आपसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, आई एम हेल्पिंग माई मदर इन द किचन। ओके, और देयर आर 2 चिल्ड्रन हु आर हेल्पिंग देयर मदर इन द किचन, दिल से the 2 children are helping their mother in the kitchen, तब आर लग जाता है। इसमें हमने इज लगाया है एज अ हेल्पिंग वर्ब बिकॉज प्रोनाउन हमारा ही है। ही इज हेल्पिंग, हेल्प इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। Okay, help is the first form, helped is the second, helped is the third form of the verb with ing. As I told you, we use ing. तो ये बेसिकली हमारा जो ये हमारा स्ट्रक्चर है उसी में हम वर्ड्स को पिरो रहे हैं और एक सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टेंस का basically, right? He is helping, ing लग गया। His mother is the object, his mother in the kitchen is the object basically। तो ये पूरक है, ये predicate है जो पूरा कर रहा है सेंटेंस को। He is helping his mother in the kitchen, this is one example। So I'd like you to come up with more such examples when you write in the comment box, and of course I'd like to see if you have totally understood. If you have any queries, you can always get back to me. Then we move on to the 4th category of our present tense. I'm going to just erase it. As I told you earlier, there are 3 categories of tenses. We are dealing with only the present tense right now. Past और future हम अपने अगले वीडियोस में करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम present tense कर रहे हैं। तो मैं 4th category, the paucity of space, हमारी थोड़ी स्पेस कम है तो हम यहाँ पर यूज करते हैं। 4th कैटेगरी ऑफ जो सेंटेंस है हमारा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है जी, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सो गाइस, वी आर डीलिंग विद द लास्ट सब टॉपिक और द सब टाइप और कैटेगरी ऑफ प्रेजेंट टेंस, दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो आई नॉर्मली बिलीव दे आर टाइम बेस्ड टेंसेस। इनका भी एक मैं आपको फ्रेमवर्क बता देता हूं। जैसे इनके फ्रेमवर्क्स हैं हमारे, तो इसमें हम नाउन या प्रोनाउन लगाते हैं प्लस हैज या हैव लगाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नाउन और द प्रोनाउन। इफ इट्स सिंगुलर वी यूज हैज, इफ इट्स प्लूरल वी यूज हैव। ओके, प्लस हम बीन लगाते हैं, प्लस इसके साथ हमारा लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing, प्लस हमारा सब्जेक्ट लगता है इसमें। ठीक है जी, तो ये हमारा एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम
वर्ड्स को पिरोएंगे और एक सेंटेंस बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस बनाएंगे। सो अगर मैं कहता हूँ कि आप कोई होमवर्क कर रहे हैं, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि अब ये कब से होमवर्क कर रहे हैं अपना, तो आप कहेंगे आई हैव बिन वर्किंग ऑन दिस होमवर्क सिंस 9 AM। मैं आपसे पूछता हूँ तो आप एक टाइम फ्रेम बताते हैं कि तब से मैं ये होमवर्क अभी कर रहा हूँ, जो हो भी चुका है पहले और अभी आप वो कर भी रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आते हैं। ओके, सो लेट्स से यू हैव बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट ऑफ बिल्डिंग अ हाउस, ओके, फॉर द लास्ट 10 years। तब आप कहेंगे आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर बिल्डिंग द हाउस फॉर द लास्ट 10 years। आप 10 साल से एक प्रोजेक्ट के ऊपर अगर काम कर रहे हैं तो आप इस तरह बताएंगे कि आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर द लास्ट 10 years। तो मैं आपको एक सेंटेंस जैसे बताता हूं, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। यहां आप लिखेंगे पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम की बात करते हैं तो सिंस यूज होता है, और पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो फॉर यूज होता है। यहां पर मैं बोलता हूं कि जैसे 2025, मैं कहना चाहता हूं कि मैं 2015 से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 2015। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर द लास्ट 10 years। ठीक है जी, तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 2015, year 2015। So basically these are time based tenses। This is a time based tense जहां पर आप एक समय का भी आप बताते हैं कि किस समय से आप वो काम कर रहे हैं और कितनी देर से वो चल रहा है काम, अभी भी हो रहा है और पहले भी हो रहा था और अब भी वो कंटिन्यू हो रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस टेंस की कैटेगरी में आते हैं। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 2015। आई हैव बीन submitting, I've been continuing with my work for the last 10 days maybe। जो आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे कोई टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आता है। तो ये हमारे 4 सब टाइप्स हैं प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मैंने आपको इन चारों के फ्रेमवर्क्स बताए हैं और उनके बाद आपको एक एक एग्जाम्पल दिया है। तो गाइस आपका होमवर्क है कि आप हमारे आप कमेंट बॉक्स में एक एक एग्जाम्पल, कम से कम एक एक एग्जाम्पल सभी सब टाइप्स का लिख कर दिखाएंगे और मुझे बताएंगे कि आपको ये वाकई में समझ आया है या इसको और समझाने की ज़रूरत है। तो ये हमारी प्रेजेंट टेंस है। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्चुअली डील विद the past tense, that is the second tense in English, and the future tense as well. And I'll explain you that once you actually have understood the tenses, you'll be able to use them correctly, of course, in your day-to-day conversation. Thank you so much. This is me signing off right now. Thank you so much, and I'm very happy that you people are with me, and I'd like to continue your support and subscribe and like my channel. Thank you so much. God bless you all.